some special transaction and their journal entries. In this video, we will learn about some special transaction and their journal entries. First one is started business. Capital refers to the amount which is invested by the businessman in the business. And for starting any business, capital investment is necessary. Without capital, no business can be started. Capital can be in the form of goods, cash or assets. That means कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है. और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाना ज़रूरी है. बिना कैपिटल लगाए कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता. ये कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, यानी कि कोई सामान, कैश मतलब पैसा लगा के भी कर सकता है, और असेट्स जिसका मतलब है कोई भी फर्नीचर, कोई भी मशीनरी लगा के भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री that will be passed for the capital invested in the business. Let's understand it with one example. Business started with cash or business commenced with cash. The journal entry will be cash account debit to capital account and narration being business started with cash. अब ये सवाल आता है कि जब हम बिजनेस चालू कर रहे हैं, हमने कैपिटल तो लगा दिया, लेकिन उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, जो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और बिजनेस कमेंस्ड विद कैश. इसका मतलब बिजनेस कैश लगा के शुरू हुआ. यहाँ पे दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, स्टार्टेड भी और कमेंस्ड भी, दोनों का मतलब एक ही है. तो हमने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, नरेशन लिख दिया बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, जिसका मतलब बिजनेस चालू हुआ कैश से. लेकिन ऐसा कैसे किया हमने, लेट्स अंडरस्टैंड. हियर इन दिस ट्रांजैक्शन इट इज क्लियर दैट businessman started business by investing cash in the business. This transaction affects two accounts. One is cash account and another one is businessman's account. But in the books of accounts, the businessman's accounts is not open. In these circumstances, the businessman's capital is open as it is representing the amount invested in business by the businessman. Cash account is real account, and as per the rule of real account, cash account is debited, which is coming in the business. And as per the rule of personal account, the giver's account is credited. Here, the businessman has given cash to the business, but instead of businessman's account, we are here crediting his capital account. So, capital account will be credited. So, the transaction becomes cash account debit to capital account, and at last narration is written, that is being business started with cash. That means इधर इस ट्रांजैक्शन में ये तो हमको पता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लगा के. तो इधर दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. क्या क्या, एक हो रहा है हमारा कैश और दूसरा हो रहा है बिजनेसमैन का अकाउंट, क्योंकि उसने कैश इन्वेस्ट किया है. लेकिन जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम उसमें बिजनेसमैन का नाम एंटर नहीं कर सकते. इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, जो कि बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे ही बता रहा है कि उसने ही तो इन्वेस्ट किया है मनी बिजनेस में. ठीक है, इसलिए हमने उसे क्रेडिट किया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो देता है उसे क्रेडिट करो, जो लेता है उसे डेबिट करो. और कैश एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो बिजनेस में आता है वो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए कैश इधर होगा डेबिट और कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट. सिमिलरली बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स. Entry will be goods account debit to capital account. Narration being business started with goods.
Here, goods account is debited because goods is coming in the business, and capital account is credited because it represents the businessman's account who have invested the goods in the business. Second is business started with furniture. In this, furniture account has been debited because furniture is coming in the business, and capital account is credited because it is representing the businessman's account. Narration, being business started with furniture. That means in first, business started with goods. इसका मतलब business start हुआ है goods लगा के, तो एंट्री बनी goods account debit to capital accounts. goods account हम यहाँ इसलिए डेबिट किए हैं क्योंकि बिजनेसमैन गुड्स लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं और गुड्स एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो आ रहा है उसे डेबिट करो, इसलिए हमने गुड्स अकाउंट को कर दिया डेबिट. कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किए क्योंकि बिजनेसमैन हमको दे रहा है. हम बिजनेसमैन का नाम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट लिख दिया. दूसरा है बिजनेस स्टार्टेड विथ फर्नीचर, तो इसकी एंट्री हमने बना दी. इसका मतलब ये है कि फर्नीचर लगा के बिजनेस चालू हुआ, तो इसमें फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि बिजनेसमैन दे रहा है, और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि गिवर को तुम क्रेडिट कर. सेकेंड इज परचेज गुड्स. गुड्स बॉट फॉर रीसेल बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज परचेज. सो व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर दिस? Let's understand it with one example. Purchase goods for cash. Entry, purchase account debit to cash account. Being goods purchased for cash. That means दूसरा है हमारा purchase goods. जो goods हम अपने business में लेके आते हैं वापस बेचने के लिए, वो होता है purchase. अब दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या एंट्री पास करेंगे, कैसे इसे एंटर करेंगे, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश. इसमें हमने गुड्स खरीदी हैं कैश दे के, तो एंट्री हमने बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एक नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, जिसका मतलब हमने गुड्स खरीदी कैश में. अब ये कैसे बना, लेट्स अंडरस्टैंड. Here in this transaction no name is given, so it will be treated as a cash transaction. The two affected accounts are goods account and cash account. Both accounts are related to the real account, and as per the real account rule, debit what comes in and credit what goes out. In this transaction, goods are coming in the business and cash is going out of the business. So, goods account is debited here. We have debited the purchase account because we are purchasing the goods. So, in place of goods account, purchase account can be written. And we have credited the cash account because the cash is going out of the business. That means इस ट्रांजैक्शन में कोई नाम नहीं है, इसलिए हम इसको एक कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे. ये मानेंगे कि काम कैश में हुआ है. दो अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा गुड्स और कैश. यहाँ पे हमने गुड्स को डेबिट नहीं किया, परचेज को डेबिट किया. दोनों का मतलब सेम ही है. गुड्स तो हम परचेज ही कर रहे हैं, हम खरीद ही रहे हैं, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे. और गुड्स को खरीदने के लिए हमको कैश देना पड़ रहा है, जिसके कारण कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है. तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो आ रहा है जो कि है गुड्स, उसे हमने कर दिया डेबिट. जा रहा है कैश, उसे हमने कर दिया क्रेडिट. सेकेंड एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम किशन. परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन्स अकाउंट. Narration, being goods purchased from kitchen. Here name is given, so it will be treated as a credit transaction. Here goods account is debited, but in place of goods account we have written purchase account. Why it has been written purchase account I have explained. And kitchen is credited because he is giver, and according to the rule of personal account the giver is credited. That means दूसरा एग्जाम्पल है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम किशन. यहाँ पे हमको ये नहीं बोला कि काम जो है वो कैश में ही हुआ है, इसलिए हम ये मानेंगे कि हमारा काम क्रेडिट में हुआ है. तो एंट्री बना देंगे
परचेज अकाउंट डेबिट टू किशन अकाउंट। यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया, जिसका मतलब हमने गुड्स अकाउंट को डेबिट किया। इसलिए किया क्योंकि रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो बिजनेस में आ रहा है तुम उसे डेबिट करो। किशन का रूल इसलिए, किशन का अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि वो एक पर्सन है और पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो देता है उसे क्रेडिट करो, इसलिए किशन क्रेडिट हुआ। थर्ड इज सोल्ड गुड्स। The goods sold during the course of business is treated as sales. So what journal entry will be passed for this? Let's understand with one example. Sold goods for cash entry, cash account debit to sales account, narration being goods sold for cash. That means third है sold goods. वो goods जो हम अपने business के दौरान बेचते हैं उन्हें हम sales कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जिसका मतलब गुड्स बेची गई कैश में, तो एंट्री हमने बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और एक नरेशन लिख दिया। अब हमने एंट्री ऐसे में क्यों लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड। हियर इन दिस ट्रांजैक्शन नो नेम इज गिवन, सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन. The two affected accounts are goods account and cash account. Both accounts are related to the real account and as per the real account rule, debit what comes in and credit what goes out. In this transaction, goods are going out of the business and cash is coming in the business. So goods account is credited. Here we have credited the sales account because we are selling the goods. So in place of goods account, sales account can be written, and we have debited the cash account because the cash is coming in the business. That means इस ट्रांजैक्शन में हमको कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए हम मानेंगे कि ये काम कैश में हुआ है। तो हमको दो अकाउंट मिला, एक तो गुड्स और एक कैश। यहाँ पे हमने ये दोनों ही रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, कैश आ रहा है हमने उसे डेबिट कर दिया, लेकिन जो जा रहा है उसमें हमने गुड्स अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसलिए किया क्योंकि हम जो गुड्स बेच रहे हैं उसे हम सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दो चीज़ आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। Second example is sold goods to Kishan. Entry Kishan debit to sales account, being goods sold to Kishan. Here name is given, so it will be treated as a credit transaction. Here goods account is credited, but in place of goods account we have written sales account, and Kishan is debited because he is a receiver, and according to the rule of personal account the receiver is always debited. That means दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सोल्ड गुड्स टू किशन। किशन को गुड्स बेची गई, यहाँ पे नाम दिया है और ये नहीं बताया कि काम कैश में हुआ, तो हम इसे एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। एंट्री हमने बना दी किशन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। किशन इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि उसको गुड्स मिल रही है और सेल्स को हमने क्रेडिट किया। एक्चुअली में हमने गुड्स को ही क्रेडिट किया है क्योंकि वो जा रहे हैं, और रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो बिजनेस से जा रहा है उसे तुम क्रेडिट कर दो। लेकिन गुड्स कैसे जा रहे हैं, सेल्स के दौरान जा रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो दो अकाउंट बने, एक किशन जो डेबिट हुआ, दूसरा सेल्स जो क्रेडिट हुआ। फोर्थ वन इज ड्रॉइंग्स। When the goods or cash are taken away by the businessman from his business for his personal use, then it is treated as drawings. Now the question arises, what will be the journal entries passed for this? Let's understand with one example. Withdrew goods of rupees 700 for personal use. Entry drawings account debit to goods account. Being goods withdrawn for personal use. दैट मीन्स फोर्थ है हमारा ड्राइंग्स। जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से गुड्स या कैश, सामान या पैसा निकाल लेता है अपने खुद के यूज़ के लिए, तब हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम
क्या एंट्री बनाएंगे, कैसे एंटर करेंगे, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल है विथड्रू गुड्स ऑफ ₹700 फॉर पर्सनल यूज़। विथड्रू का मतलब निकालना। जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से 700 के गुड्स निकाल लिया, किस लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये एक ड्राइंग्स अकाउंट हो गया, हमने एंट्री बना दी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ऐसे कैसे किया हमने, लेट्स अंडरस्टैंड। Here in this transaction we have debited the drawings account because it is representing the businessman's account, and the purchase account or the goods account is credited because the goods are going out of the business, and according to the rule of real account what goes out from business is credited. So the goods account will be credited, and we can in place of goods account can write purchase account because the goods that we have purchased in the business that are only going out of the business, not the sold goods are going. So we can write purchase account in place of goods account, so the transaction becomes drawings account debit to goods account. That means इस ट्रांजेक्शन में हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसलिए डेबिट कर दिया क्योंकि हम बिजनेसमैन का अकाउंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। तो ड्राइंग बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेसमैन यहाँ पे उसको गुड्स मिल रही हैं, तो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को होना चाहिए डेबिट। इसलिए हमने ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जो कि उस बिजनेसमैन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमने क्रेडिट कर दिया गुड्स अकाउंट को। एक्चुअली में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारी परचेज की हुई गुड्स ही जा रही है, हमारी खरीदी हुई गुड्स ही जा रही है। जो वो खरीदा था बेचने के लिए उसे ही वो निकाल ले रहा है, इसलिए हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और लास्ट में हम एक नरेशन लिख देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ₹500 withdrawn for personal use. Here we are withdrawing the cash. Okay, entry is drawings account debit to cash account. Narration, being cash withdrawn for personal use. Here drawings account is debited and cash account is credited because according to the rule of real account what comes out from the business is credited, and here cash is going out of business so it will be credited. तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ₹500 withdrawn for personal use, जिसका मतलब 500 का कैश बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से निकाला है। तो हमने एंट्री बना दी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट को हमने क्यों डेबिट किया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और कैश अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि अब बिजनेसमैन ने कैश निकाल दिया, तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो तुम्हारे बिजनेस से जाता है उसे तुम क्रेडिट करो, इसलिए हमने कैश अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो हमारा ट्रांजेक्शन बन गया, एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ इज लॉस बाय थेफ्ट और फायर। Sometimes the goods may be lost by theft or may be damaged by fire in the business. In both the circumstances, it is treated as a loss. So it is debited in the books of accounts and deducted from the purchase as it makes some deduction in the total purchase of business. Entry, loss by fire or the theft account debit to purchase account, being goods lost by fire or theft. That means fifth है हमारा lost by theft और fire। बिजनेस में कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स या तो कोई चोर चुरा ले जाता है या गुड्स जल जाती है, दोनों में ही हमारा लॉस होता है। और नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो लॉस होता है वो हमेशा डेबिट होता है, इसलिए हम इधर लॉस बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि जो हमारी गुड्स है, गुड्स अकाउंट का रूल बोलता है, मतलब रियल अकाउंट का रूल बोलता है जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। तो हमारी खरीदी हुई गुड्स ही जा रही हैं और उसके कारण हमारा परचेज भी कम हो जाएगा, इसलिए हमने परचेज अकाउंट को कर दिया क्रेडिट और फिर ट्रांजैक्शन लिख दिया।
इसको और अच्छे से हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। Here the example is goods of rupees 200 destroyed by fire. Here we have debited loss by fire account because according to the rule of nominal account all the losses are debited and our goods have been destroyed by fire. It means we are facing the loss and purchase account has been credited. It has been credited because goods are going out of business. We have lost that goods and narration is written being goods destroyed by fire. That means ये example है goods of rupees 200 destroyed by fire, जिसका मतलब कि 200 के गुड्स हमारे जल गए, फायर लग गई, जल गए। तो हमने लॉस बाय फायर अकाउंट लिख के उसे डेबिट किया। डेबिट इसलिए किया क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है जो भी तुम्हारा नुकसान हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसे तुम कर दो डेबिट। और परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि जो गुड्स हमने खरीदी है वही जल गई, इसलिए परचेज होगा कम तो परचेज अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन गई लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर यहाँ पे लिखा होता कि गुड्स ऑफ रुपीज़ 200 वॉज स्टोलन, तो अब चोरी हो गई तो भी लॉस हो गया, तो इस केस में भी परचेज अकाउंट तो क्रेडिट हो गई, लेकिन डेबिट में हम लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट क्योंकि अब चोरी हुई है। परचेज रिटर्न्स अकाउंट। When the purchased goods are returned to the seller due to any reason, it is said to be purchase returns and they are entered in purchase return account. It is also known as written outward. Entry: creditor account debit to purchase returns account, being goods returned to creditor. That means जब हम गुड्स को वापस भेज देते हैं सेलर को, जिससे हमने खरीदी है उसको हम वापस दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमको गंदी गुड्स दे देते हैं, हम तुरंत नहीं देख पाते, बाद में देखते हैं तो हम उसे वापस कर देते हैं। तो जो वापस हम कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न और इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। इसकी एंट्री हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्रेडिटर को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जब भी कोई चीज़ रिसीव करेगा वो डेबिट होगा। तो हमने पहले उसे खरीदा तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, अब हम उसे दे रहे हैं, वो रिसीव कर रहा है, तो वही क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे। और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है क्योंकि हमने गुड्स खरीदी, अब हम उसे वापस करने जा रहे हैं, तो वापस करने जा रहे हैं इसलिए परचेज रिटर्न हो गया क्रेडिट। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल गुड्स ऑफ रुपीज़ 200 रिटर्न टू मोहन। एंट्री मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन। Here we have debited Mohan because he is receiving the goods and according to the rule of personal account, the person who is receiving is always debited and purchase returns is credited because we are returning the purchased goods and narration being goods returned to Mohan. That means example है goods 200 की हमने मोहन को रिटर्न कर दी, तो हमने मोहन को कर दिया डेबिट क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जब भी कोई चीज़ कोई रिसीव करेगा तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया क्योंकि हम अपनी परचेज की हुई गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं किसी कारण से। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू मोहन, जिसका मतलब हमने गुड्स रिटर्न कर दी मोहन को। 7th is sales return account. When the goods are returned by the customer due to any reason, it is said to be sales returns and they are entered in sales return account. It is also known as return inwards account. Entry: sales return account debit to customer, being goods written by the customer. दैट मीन्स जब हमारा कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न कर देता है किसी भी कारण से तो उसे सेल्स रिटर्न बोलते हैं और सेल्स रिटर्न के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं सब सेल्स रिटर्न अकाउंट में एंटर होंगे और इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलेंगे। एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर को क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि कस्टमर हमको वापस ला के दे रहा है, हमारा गुड्स जो दे रहा है वो क्रेडिट और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ वन एग्जाम्पल।
Example, goods of rupees 200 were written by Sunil. Entry, sales written account debit to Sunil, being goods written by Sunil. Here sales account written is debited because goods are again coming in business and that goods are coming which we have sold, and the customer is returning the goods, he is giving the goods, so according to the personal account he will be credited. दैट मीन्स एग्जाम्पल है 200 के गुड्स सुनील ने हमको रिटर्न कर दिए, तो उसने रिटर्न किए तो हमारे पास गुड्स आ रहा है। तो कौन सा गुड्स आ रहा है, जो हमने बेच दिया था वो वही गुड्स ला के दे रहा है, इसलिए हम उसको परचेज ना लिख के और उसको हम सेल्स रिटर्न अकाउंट लिखेंगे और सुनील के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है जो लाता है जो देता है उसे तुम क्रेडिट करो, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सुनील, कि सुनील ने गुड्स रिटर्न किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।